ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కారిడార్ బుందేల్ఖండ్ పోతుంది. అదే రకంగా వ్యాక్సిన్లు ఇక్కడ తయారైతే కసోలీలో ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఇదేం లాజిక్ అర్థం కాదు అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది గుండు సున్నా. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆ స్ఫూర్తి కనబడడం లేదు అధ్యక్ష. आदाब नाजरीन, मैं हूं मुनाज़ा शाह। तेलंगाना खास बात डिबेट में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे तेलंगाना को मरकज से शिकायत, हकीकत या सियासत। మరి ఇదేం లాజిక్ అర్థం కాదు. పసుపు ఇక్కడ పండుతుంది, బోర్డు ఇక్కడ పెట్టరు. రక్షణ రంగం ఈకోసిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కారిడార్ బుందేల్ఖండ్ పోతుంది. అదే రకంగా వ్యాక్సిన్లు ఇక్కడ తయారైతే కసోలీలో ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఇదేం లాజిక్ అర్థం కాదు అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది గుండు సున్నా. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆ స్ఫూర్తి కనబడడం లేదు అధ్యక్ష. तेलंगाना के कारगुजार सदर और रियासती वजीर आईटी तारक रामाराव ने एक बार फिर मरकजी हुकूमत पर तरक्की की जानिब तेजी से बढ़ रही रियासत तेलंगाना को हर मामले में नजरअंदाज करने का इल्जाम लगाया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ज़ेर क़यादत मरकजी हुकूमत ने हैदराबाद मेट्रो रेल फेज 2 के लिए फंड्स नहीं देकर इलेक्शन के पेश नजर चेन्नई में मेट्रो रेल के लिए फंड्स का ऐलान किया। काकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क शुरू नहीं हुआ। हैदराबाद में फार्मासिटी बयारम स्टील प्लांट में कोई पेशरफ्त नहीं हुई। वरंगल में रेल कोच फैक्ट्री देने के बजाय महाराष्ट्र को रेल कोच फैक्ट्री दी गई। निजामाबाद में हल्दी बोर्ड के मुतालबे को नजरअंदाज करके तमिलनाडु के इंतखाबी मंशूर में शामिल किया गया। वैक्सीन की तैयारी तेलंगाना में, लेकिन टेस्ट लैब का क़याम कसौली में किया गया। इसी तरह डिफेंस इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कॉरिडोर ITIR स्कीम नहीं दी गई। तेलंगाना के लिए कोई तालीमी इदारा मंजूर नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना के मसाइल पर मरकजी हुकूमत को कई मरतबा हर तबके से तवज्जो दिलाई गई, लेकिन हुकूमत ने तेलंगाना के बजाय दीगर रियासतों पर तवज्जो दी। ఏమో ఎలక్షన్లు ఉన్నాయి కాబట్టి 63,000 కోట్ల అధ్యక్ష. ఆ వచ్చేదేందో పోయేదేందో తెలియదు అధ్యక్ష. కానీ హైదరాబాద్కి అడిగితే మాత్రం వారికి ఎందుకో మనసు ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్స్ కావాలి అంటే స్పందన ఉండదు. ఇక్కడ పోని ఇండస్ట్రియల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ఏర్పాటు కోసం సహకరించండి అంటే స్పందన ఉండదు. మెగా టెక్స్టైల్ పార్క్ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం వరంగల్లో, స్పందించండి సహకరించండి అంటే దానికి సాయం చేయరు అధ్యక్ష. హైదరాబాద్ ఫార్మాసిటీ ఏర్పాటు చేస్తున్నాం సహకరించండి అంటే దానికి సాయం ఉండదు అధ్యక్ష. ఇండస్ట్రియల్ కారిడార్ బిట్వీన్ హైదరాబాద్ వరంగల్, హైదరాబాద్ బెంగళూరు, హైదరాబాద్ విజయవాడ ఇవి ఏర్పాటు చేయాలనుకుంటున్నాం సహకరించండి అంటే స్పందించరు అధ్యక్ష. స్పందించకపోగా అధ్యక్ష 2014లోనే వారు ఆంధ్రప్రదేశ్ పునర్విభజన చట్టంలో మాటిచ్చినారు అధ్యక్ష. ఇంటిగ్రేటెడ్ స్టీల్ ప్లాంట్ స్టీల్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా లిమిటెడ్ ద్వారా ఏర్పాటు చేస్తామని చెప్పారు బయ్యారంలో. 7 ఏళ్ళైంది అధ్యక్ష, దాదాపు 6.5-7 ఏళ్ళైంది. ఇప్పటి వరకు కనీసం ఎన్నిసార్లు చెప్పినా ఎన్నిసార్లు అడిగినా గొంతు చించుకున్నా పార్లమెంట్లో గొడవ చేసినా స్పందన లేదు అధ్యక్ష. ఇప్పటి వరకు కనీసంగా కూడా వారు ఉలుకు లేదు పలుకు లేదు అధ్యక్ష. ఇది వరంగల్లో రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీ పెడతామన్నారు అధ్యక్ష. ప్రభుత్వాన్ని అడిగారు, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాన్ని స్థలం కేటాయించమన్నారు. 150 ఎకరాల స్థలం కేటాయించాం అధ్యక్ష. కానీ పీయూష్ గోయల్ గారు చెప్తా ఉన్నారు అధ్యక్ష, పెట్టే ఛాన్స్ లేదని చెప్తా ఉన్నారు. పక్కనున్న మరఠ్వాడాలో మహారాష్ట్రలో 2018లో ప్రతిపాదన వచ్చింది అధ్యక్ష రైల్ కోచ్ ఫ్యాక్టరీకి. 2018లో ప్రతిపాదన వస్తే అక్కడ ఫ్యాక్టరీ పెట్టినారు, నిన్న మొన్న పూర్తి చేశారు, వారు అక్కడ ప్రారంభం కూడా చేసినారు అధ్యక్ష. మరి ఇదేం లాజిక్ అర్థం కాదు. పసుపు ఇక్కడ పండుతుంది, బోర్డు ఇక్కడ పెట్టరు. రక్షణ రంగం ఈకోసిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కారిడార్ బుందేల్ఖండ్ పోతుంది. అదే రకంగా వ్యాక్సిన్లు ఇక్కడ తయారైతే కసోలీలో ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఇదేం లాజిక్ అర్థం కాదు అధ్యక్ష. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆ స్ఫూర్తి కనబడడం లేదు అధ్యక్ష. नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ TRS लीडर कृषंक जुड़ चुके हैं, साथ ही हमारे साथ बीजेपी स्पोक्स पर्सन NV सुभाष भी जुड़ चुके हैं। कृषंक, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि तेलंगाना हुकूमत को क्यों मरकज से जो है इतनी नाराजगी है, क्या वजह है इसकी? कौन से ऐसी स्कीम्स है जिनको नहीं तेलंगाना हुकूमत अमला पाई मरकज की अदम तवज्जोही की वजह से? के लिए नहीं दिया। जो आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में तेलंगाना के लिए था, रेल कोच फैक्ट्री, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, अभी तक तेलंगाना को नहीं दिया गया। हल्दी बोर्ड, भारतीय जनता पार्टी के सांसद धर्मपुरी अरविंद बहुत ज्यादा बात करते। चुनाव पत्र में एक बॉन्ड पेपर, लीगल बॉन्ड पेपर लगाकर उन्होंने वादा किया कि अगर 5 दिन में हल्दी का बोर्ड नहीं लाएंगे इस्तीफा कर देंगे।
अभी तक हल्दी बोर्ड नहीं आया और केंद्र सरकार बता कि हल्दी बोर्ड नहीं आएगा, पर तमिलनाडु के इलेक्शन मैनिफेस्टो में हल्दी बोर्ड तमिलनाडु के वोटर्स के लिए प्रॉमिस देते हैं, बल्कि तेलंगाना इस देश में अव्वल आपकी आवाज कृष्णक जी हमारे तक इस वक्त नहीं पहुंच पा रही है। सुभाष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार तेलंगाना हुकूमत बीजेपी सरकार पर इल्जाम लगा रही है कि मरकज की बीजेपी सरकार जो है वो सियासत को जो है इंपॉर्टेंस दे रही है, डेवलपमेंट के बजाय जो वादे तेलंगाना से किए गए थे उनको पूरा नहीं किया जा रहा है, बल्कि बीजेपी जो मरकज की बीजेपी सरकार है वो मौका देखती है कि कहां पर इलेक्शन हो रहे हैं, उसी हिसाब से अपनी पॉलिसीज, अपनी स्कीम्स भी चेंज कर रही है। अभी तेलंगाना हुकूमत और खासकर केटीआर ने लगातार केंद्र सरकार के ऊपर, मोदी के सरकार ऊपर ये बातचीत करते रहते हैं कि तेलंगाना सरकार को जितना ज़्यादा फंड्स मिलना चाहिए वो फंड्स आज तक नहीं मिले। इसका वो जो सवाल करने का उसका हक है, मगर एक बार 2014 से के बाद जब तेलंगाना में केसीआर सरकार का हुकूमत आने के बाद जी आप एक देखिए मैडम, असेंबली में साफ साफ बताया है कि तेलंगाना सरकार ने इसका सरप्लस फंड्स का जिक्र भी किए थे। जब एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में जितना जितना वादा किए थे जब तो कांग्रेस सरकार ने, इसमें ज़्यादा तरफ झूठा वादा भी थे। उसमें तेलंगाना सरकार में बजट में पेश किया था कि हमारा राज्य एक सरप्लस राज्य है। इसकी वजह उनका जितना भी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में होना था उसमें मुमकिन काम हुआ वो सब करते रहे। अभी तो कृषांक ने ये साफ साफ बता रहा है कि तेलंगाना सरकार के जितना भी प्रोजेक्ट मिलना चाहिए वो बुंदेलवाल और अपना मराठवाड़ा और तमिलनाडु को चले गए। उसमें झूठ ज़्यादा है, उसमें झूठ ज़्यादा है, क्योंकि इतना लगातार केंद्र सरकार ने तेलंगाना सरकार को पूछे थे कि इधर रेलवे कोच जो काजीपेट में, अभी तेलंगाना सरकार का दावा नहीं है ये पिछले 50 साल से भी इधर एक रेल फैक्ट्री करने के लिए इसमें एक बड़ा प्रपोजल आया था, मगर उसमें काजीपेट में लैंड देने का, जमीन देने का वो तो तेलंगाना सरकार ही देना पड़ता था उसमें। और तेलंगाना सरकार ने केंद्र सरकार को ये पत्र भी लिखा है कि इसमें कोर्ट केसेस है, क्योंकि वो अपना एंडोमेंट लैंड है। एंडोमेंट लैंड में जितना भी कोर्ट केसेस है वो कोर्ट केस होने के बाद हम ये लैंड सौंपा जाएंगे। अब देखिए, अभी रेलवे कोच फैक्ट्री जितना बड़ा स्टेशन रहता है जी, और जिसमें रेलवे ट्रैक रहता है उसके बगल में ही लगाना पड़ता, दूसरा एक जगह में लगा नहीं सकते। आज तक तेलंगाना सरकार ने जमीन जितना भी मांगा था, केंद्र सरकार खासकर रेलवे बोर्ड आज तक सौंपा नहीं था। और हल्दी बोर्ड के बारे में इतना अभी बात करते रहते हैं जी कि स्पाइस बोर्ड का जितना भी है, अब जैसे अभी ये जो पार्लियामेंट में जो नया जो कानून आया था, कौन सा, किसानों का ये फार्म बिल जो आया था, फार्म बिल आने के बाद हल्दी बोर्ड या स्पाइसेस बोर्ड का इम्पोर्टेंस एकदम कम हो गया। मगर इधर निजामाबाद में स्पाइस बोर्ड में एक एक्सटेंशन काउंटर भी लगाया था। उसमें जितना भी उधर हल्दी, जितना भी उधर ये जो क्रॉप यील्ड होता है वो देश में किधर भी बेच सकते जी। तो फायदा होने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म नरेंद्र मोदी सरकार ने बनाया था। और एक क्या बोल रहे थे अभी, डिफेंस फैक्ट्री और आईटीआर फैक्ट्री के आईटीआईआर में, इसमें इतना झूठा है कि तेलंगाना सरकार इतना झूठा बनते थे कि केंद्र सरकार से जितना भी पैसे मिले थे वो सब डाइवर्ट करके इरिगेशन प्रोजेक्ट के ऊपर एकदम लगाए। इरिगेशन के प्रोजेक्ट के ऊपर जितना ज्यादा लगाया कि 40,000 करोड़ का जो जितना भी एस्टिमेशन है वो 1,50,000 करोड़ का एस्टिमेशन बना दिए थे।
तो पैसा कहाँ से मिलते हैं? जितना भी सेंटर से या जी, जितना भी फंड्स ठीक है। आते रहते हैं, कृष्ण जी, आपने सुना सुभाष जी को। साथ ही साथ ये सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, कांग्रेस भी ये इल्जाम लगा रही है कि फंड्स तो आते हैं लेकिन जो तेलंगाना की हुकूमत है उनको सही से वो यूटिलाइज ही करना नहीं आता है। डिटेल्ड रिपोर्ट्स अगर वक्त से दी जा चुकी होती तो कई स्कीमें जो है, कई प्रोजेक्ट्स जो है वो पूरे हो चुके होते अब तक। कॉल कट गया था, मुझे मालूम नहीं था क्या मैंने लास्ट क्या पे किया, तो इसलिए मैं 3 पॉइंट बात कर रहा हूं जो मैंने सुभाष जी का सुना है। एक, उन्होंने बोला कि रेल कोच फैक्ट्री के लिए अभी तक लैंड नहीं दिया गया जी, वो झूठ है। 150 जो वहां पे एकड़ 150 एकर्स लैंड ऑलरेडी साउथ सेंट्रल रेलवे जनरल मैनेजर को हमारे मिनिस्टर और सारे वरंगल के लीडर्स है उन्होंने सौंप दिया। ये शायद भारतीय जनता पार्टी को लोगों को नहीं मालूम है। और एक बात, उन्होंने ITIR के फंड्स को हमने डाइवर्ट किया बोला है, ये झूठ है, क्योंकि ITIR को तेलंगाना में और इवन बेंगलुरु में भी बीजेपी सरकार ने स्क्रैप कर दिया है। 1 पैसा भी उन्होंने ITIR के लिए नहीं दिया है। ITIR और को एक बात, लेकर नहीं लगातार ये मुद्दा बीजेपी ने भी उठाया है और कहा है कि जब जो कंसर्न्ड मिनिस्टर है उन्होंने ही उस पर कोई डिटेल्ड रिपोर्ट ही पेश नहीं की तो उसको आगे फिर उस पर किस तरह से काम हो पाता। तो डिलेड जो है, बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि वो तो खुद तेलंगाना गवर्नमेंट ने किया है इस हवाले से। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट 2013 में ही दे दिया गया था। उसके बाद 600 करोड़ उसके लिए सैंक्शन हुए थे कांग्रेस के सरकार में। फिर से नया से डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, बार बार डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट नहीं होता है। और उसके बाद भी हमने प्रधानमंत्री जी को, रविशंकर प्रसाद जी को जो IT के मिनिस्टर है, इनको बार बार हमने पर्सनली भी मिला है और लेख भी लिखा है। तो ये लोग बहाना बना रहे। फिर बेंगलुरु का क्यों उन्होंने कैंसिल कर दिया, ये इनको बोलना चाहिए। और एक बात, कॉस्ट एस्केलेशन के बारे में बात कर रहे हैं। कल 24 घंटे पहले अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो सिर्फ 5 लाख एकड़ को खेती के लिए देता है, उसको 2000 करोड़ का 21 करोड़ एस्केलेशन हुआ है और उसको नेशनल स्टेटस मिलता है। पर कालेश्वरम प्रोजेक्ट जो 50 लाख एकड़ के लिए आज खेती के लिए सहायता दे रही है, ऐसे प्रोजेक्ट को तेलंगाना में केंद्र सरकार नेशनल स्टेटस नहीं देती है। क्यों नहीं देती है? क्योंकि सिर्फ कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की उनकी राज्य सरकार है। तो स्पष्ट में जो भी ये लोग आरोप दे रहे हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद है। ठीक है सुभाष जी, जिस तरह से तेलंगाना हुकूमत जो है लगातार ये इल्जाम लगा रही है कि बीजेपी की जो मरकज की सरकार है वो जब तेलंगाना की डेवलपमेंट की बात होती है तो तेलंगाना जिस तरह से तरक्की कर रहा है, जिस तरह से ग्लोबल लेवल पर रिकॉग्निशन मिल रही है तेलंगाना को, उसको प्रेज तो जरूर करता है, तारीफें जरूर करता है, लेकिन जब फंड्स की बात आती है, जब डेवलपमेंटल काम की बात आती है, तब बीजेपी पॉलिटिक्स करती है और उसके अलावा और कुछ भी नहीं करती। अब देखिए, अभी बीजेपी को पॉलिटिक्स करना है तो पूरा देश में 19 राज्य है, 29 स्टेट्स है उसमें। तो उसमें 29 स्टेट्स में हम राज्य करने का, तो पॉलिटिक्स करने का मतलब ही नहीं है। मगर तेलंगाना राज्य में इतना झूठा पार्टी और झूठा ये जो सरकार है, उसमें जब भी या बाई इलेक्शंस होने दो या कुछ भी, ये जो इलेक्शंस आने से ही शुरू करते हैं कि केंद्र सरकार के ऊपर जितना भी ये लोग जो प्रॉमिस किए थे मैनिफेस्टो में, जो भी लिखे थे 2014 और 2019 में असेंबली में या पार्लियामेंट में जितना भी मैनिफेस्टो लिखे थे, वो अनइमेजिनेबल, बोल तो वो इम्पॉसिबल है वो जो जस्ट इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसको एक अच्छा मौका मिल गया कि केंद्र सरकार के ऊपर ये जस्ट इल्जाम लगा के इलेक्शन में जाते हैं। अब सिर्फ अभी लगातार ITIR के बारे में बात कर रहे हैं जी। 2017 में ये जो स्क्रैप हुआ था, उसके पहले भी केंद्र सरकार ने साफ राज्य सरकार को लिखा है कि हम लोग ये स्क्रैप कर रहे हैं, आपका जितना भी प्रपोजल्स है, जैसा MMTNs का एक्सटेंशन है और उसके बाद रीजनल रिंग रोड्स का एक्सटेंशन है, वो सब आप एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट और उसके बाद उसका पूरा एस्टिमेट्स लिखा के और केंद्र सरकार को भेजने का एक अच्छा मौका था। मगर जी राज्य सरकार को यह है कि अगर केंद्र सरकार से फंड्स मिले हैं और
नरेंद्र मोदी का नाम एकदम रोशन हो जाएगा। ये पूरा वजह सिर्फ इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के लिए। ठीक है, हमारे और साथ इस केंद्र वक्त सरकार के कांग्रेस ऊपर लीडर मोहम्मद सलीम भी जुड़ चुके हैं। मोहम्मद सलीम, जिस तरह से तेलंगाना हुकूमत मरकज पर इल्जाम लगा रही है फंड्स प्रोजेक्ट्स के हवाले से, उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बीजेपी गवर्नमेंट और टीआरएस गवर्नमेंट दोनों का तालमेल एक साथ चल रहा है। ये उनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, वो इनके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। ये दोनों बराबर के जिम्मेदार हैं। जैसा कि बीजेपी गवर्नमेंट 2014 में आई और उसी वक्त जो है ना हमारे पास तेलंगाना में टीआरएस गवर्नमेंट आई। जब से ये दोनों गवर्नमेंट सेंटर में और स्टेट में फॉर्म हुए, जब से जो है ना यानी कि सारे मुल्क को एक किस्म का रियल में कहने से जो ना कोरोना जब ही लग गया 2019 में मालूम पड़ा कि जो ना कोरोना आया, लेकिन हमारे हिंदुस्तान में कोरोना तो 2014 में ही लग गया था। जब से ये बीजेपी गवर्नमेंट सेंटर में आई, स्टेट में जो है ना टीआरएस गवर्नमेंट आई, जब से जो है ना सिर्फ नुकसान के सिवा कोई और फायदा नहीं है। पब्लिक पूरी परेशान है, सारी हिंदुस्तान की पब्लिक परेशान है। और ये एक दूसरे पे इल्जाम लगा रहे हैं। टीआरएस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट पे इल्जाम लगा रही है और बीजेपी गवर्नमेंट जो है ना टीआरएस पे इल्जाम लगा रही है। जबकि सच ये है कि अगर वाकई बीजेपी गवर्नमेंट वाकई अगर तरक्की पसंद है तो आज 2014 से लेके आज तक जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ रहा है, यानी कि पिछली 40-50 साल में कभी अनएम्प्लॉयमेंट इतना नहीं बढ़ा था जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद हुआ। और लगातार जैसे मोदी जी गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हिंदुस्तान भेजो, इंडिया इज फॉर सेल नाउ, और टीआरएस गवर्नमेंट यहाँ की तेलंगाना की जितनी भी जमीन है सब बेचने में लगी हुई है। ये दोनों जो है ना सेल परचेज के मामले में लगे हुए हैं। पब्लिक की भलाई के लिए, डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं कर रहे हैं। कृष्ण जी, आपसे जानना चाहेंगे, कांग्रेस ये लगातार इल्जाम लगा रही है कि ये तो वही पार्टी है जो पॉलिटिकली अगर सेंटर पर देखे तो बीजेपी का सपोर्ट करती है और अब फिर इस तरह के इल्जाम लगा रही है। कांग्रेस को सिर्फ पॉलिटिक्स चाहिए, पब्लिक इश्यूज नहीं चाहिए। मैं अभी आपके सामने नागार्जुन सागर से खड़ा हुआ हूँ, जहाँ पे बाय इलेक्शन है। यहाँ पे कांग्रेस 30 साल से पावर में है। सात बार यहाँ के जाना रेड्डी जी मिनिस्टर, बहुत सीनियर होम मिनिस्टर के जैसे भी काम कर। यहाँ के हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल के लिए 19 करोड़ से नया बिल्डिंग और नया इक्विपमेंट टीआरएस ने बनाया। गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज, हॉस्टल बिल्डिंग टीआरएस ने बनाया। मेरे पीछे नागार्जुन सागर डैम है, इतना बड़ा सा डैम है, पर नागार्जुन सागर के लोगों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता था। 13 लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, कुंकुड़ चेट्टू तांडा प्रोजेक्ट, नेलिकल लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये केसीआर जी के सरकार ने किया। तो 30 साल में क्या किया? यहाँ अभी भी ड्रेनेज सिस्टम का प्रॉब्लम है। 2014 तक कांग्रेस पावर में थी, पर फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम था। वो फ्लोरोसिस का प्रॉब्लम आज तेलंगाना राष्ट्र समिति, तेलंगाना के सरकार के वजह से गया। फिर भी कांग्रेस राजनीति बात करना चाहती है, तो हम हमारे अंश केंद्र सरकार के साथ बिल्कुल लड़ रहे हैं। इसलिए हमारे मुद्दे राजनीति नहीं, हल्दी बोर्ड के बारे में बात करना है। हम बीजेपी को प्रश्न फिर से पूछना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या बताया, हमने स्पाइसेस बोर्ड दिया, एक्सटेंशन सेंटर दिया, टर्मरिक बोर्ड की जरूरत नहीं है। फिर अगर टर्मरिक बोर्ड की जरूरत नहीं है, क्यों भारतीय जनता पार्टी के सांसद अरविंद ने वादा क्यों दिया? क्यों तमिलनाडु के इलेक्शन मैनिफेस्टो में अगर टर्मरिक बोर्ड की जरूरत तेलंगाना के लोग को नहीं है, तो क्यों तमिलनाडु के इलेक्शन मैनिफेस्टो में आप क्यों वादा दे रहे? पूछते हैं कि अगर वादे पूरे नहीं होने थे तो फिर वादे क्यों किए बीजेपी ने? अब देखिए, अभी तो कृष्ण जी को भी एक बार ये पार्लियामेंट का बिल के बारे में भी, और खासकर तेलंगाना राष्ट्र समिति का जो पार्टी वर्कर्स और जो नेता है, उनके ये जो फार्म बिल के ऊपर जो पार्लियामेंट में पास हुआ था राज्यसभा और लोकसभा में, उसके बारे में एक बार जानकारी होना चाहिए। क्योंकि फार्म बिल से जितना भी इधर किसान है, जो भी राज्य से है, उनको ज्यादा से ज्यादा डबल से इनकम, मिनिमम डबल का इनकम, ये नरेंद्र मोदी का सरकार ने 2014 में ही फायदा किया था। उसके इसमें से ये जो एकदम अच्छा प्लेटफॉर्म जो बनाया था टर्मरिक बोर्ड का, हमारा संसद में 100% उसका वादा तो किया था। सुनिए
वादा तो किया था, ये जस्ट हम भी मानते हैं, मगर उससे भी ज्यादा फायदा अभी सभी लोगों को हो रहा है एक्सेप्ट टीआरएस लीडर्स को, क्योंकि टीआरएस लीडर को एक इंस्ट्रूमेंट चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी को कैसा दबाए, क्योंकि इधर भारतीय जनता पार्टी का रोज जितना भी उनका नहीं, लेकिन सुभाष जी वादे जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को लेकर भी किए थे। अब जब मरकजी सरकार ने सैंक्शन किए तो तेलंगाना के लिए कोई भी जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वो सैंक्शन नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? IIM नहीं दिया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन नहीं दिया, IISER नहीं दिया, जी सुभाष जी ट्राइबल नहीं दिया। सुनिए, अभी बीबी नगर में नीम्स बोल के लगाए थे, जितना अब तक जितना 20 साल हुआ था, मगर केंद्र सरकार ने इमीडिएटली उनको एक्सटेंशन करके 150 करोड़ का जो फंड्स देने के बाद उसको एम्स के स्टेटस ले दिया। ये तेलंगाना सरकार नहीं दिया और कांग्रेस सरकार ने दिया, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का सरकार दिया था। और ट्राइबल यूनिवर्सिटी कभी 2016 में ही उधर बिल भी पास हुआ था, मगर आप जमीन देना, अभी केंद्र सरकार का जमीन रहता है इधर राज्य में। मोहम्मद सलीम जी आप बताएं कि लगातार यहाँ पर चाहे तेलंगाना की हुकूमत हो, टीआरएस हो या बीजेपी हो, दोनों कह रहे हैं कि हम लोग तो डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस जब बात करती है तो ये सियासत ही बीच में लाती है, ये अवाम के हक में बात नहीं करती। 70 साल में जो डेवलपमेंट हुआ, 70 साल में जो डेवलप करी है हिंदुस्तान को, आज आजादी से पहले हिंदुस्तान जो है ना बैल मंडी पे सफर किया करता था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बैल मंडी पे हुआ करती थी। कांग्रेस पार्टी उस हिंदुस्तान को जो है ना आज मंगलयान पे लेके गई। ये ITIR और जो एम्स है और IIT है, जितने भी इंस्टीट्यूट्स है, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स है, DRDL, DMRL, PSUs, जितने भी इंडिया में इंस्टीट्यूट्स है, ये कौन बनाए? ये सारे के सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी कि डिफेंस के हर फील्ड में कौन डेवलप करे? ये पूरा डेवलपमेंट जो है ना कांग्रेस पार्टी की, सिर्फ बीजेपी गवर्नमेंट और मोदी जी जो है ना सिर्फ तकरीरों में और भाषणों में मशहूर है। वो 6 साल में कुछ किए नहीं, सिर्फ जो किए थे, जो कांग्रेस पार्टी जो करी थी, उस इंडस्ट्रीज को बेचने में लगे हुए हैं, बल्कि सारे हिंदुस्तान को बेचने में लगे हुए हैं। और जो भी इनके खिलाफ में आवाज उठाया उनको जो है ना सख्ती से कार्रवाई करते हैं। CBI रेड, IT रेड, ED रेड, ये रेड करके दबाकर जो है ना अपने पॉलिटिकल सिक्का चला रहे हैं। ये डेवलपमेंट का काम बताइए 6 साल में क्या काम करें? जानना चाहूंगी कि कांग्रेस कह रही है कि जो टीआरएस है वो लगातार कह रही है कि उनको फंड्स नहीं मिलते, लेकिन जब प्रीवियस कांग्रेस गवर्नमेंट्स रही है उनको लैंड भी दिए गए थे, लेकिन वो अपने ग्रुप ऑफ लोगों को वो बेच चुकी है। और ऐसे में जो है तेलंगाना हुकूमत जो है वो खुद ही फंड्स को अपने लीडर्स के लिए यूज करते हैं और फिर कहते हैं कि हमारे लोगों के लिए तो कुछ है ही नहीं, ऐसे वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कृष्ण जी तक हमारी आवाज ये पूछिए जी टीआरएस को, ये जो टर्मरिक बोर्ड है इसके बारे में कितने बार वो लोग सवाल उठाए, ITIR के बारे में कितने बार पार्लियामेंट में सवाल उठाए, ये पूछिए। कृष्ण जी से हमारी आवाज उन तक शायद नहीं पहुंच पा रही है, वक्त की कमी है। मोहम्मद सलीम बेहद शुक्रिया आपका, कृष्ण आपका भी बेहद शुक्रिया, साथ ही साथ NV सुभाष जी आपका भी बेहद शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। नाजरीन हमें दीजिए इजाजत, आदाब। లాజిక్ అర్థం కాదు. పసుపు ఇక్కడ పండుతుంది, బోర్డు ఇక్కడ బెటర్. రక్షణ రంగం ఈకో సిస్టమ్ ఇక్కడ ఉంటుంది, డిఫెన్స్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ కారిడార్ బుందేల్ఖండ్ పోతుంది. అదే రకంగా వ్యాక్సిన్లు ఇక్కడ తయారైతే కసోలీలో ల్యాబ్ ఉంటుంది. ఇదేం లాజిక్ అర్థం కాదు అధ్యక్ష. మన రాష్ట్రానికి ఇచ్చింది గుండు సున్నా. సబ్కా సాత్ సబ్కా వికాస్ అంటారు, కానీ ఇక్కడ మాత్రం ఆ స్ఫూర్తి కనబడడం లేదు అధ్యక్ష. हम हैं यारा फर्टिलाइजर्स,